All right, students. So Anjali ma'am have joined us, and today we'll be giving you certain instructions regarding your half-yearly examinations. Yesterday we had conducted an online examination of yours, and there are certain problems that we have found in your answer sheets. Therefore, right now Anjali ma'am is going to share certain feedbacks with you. Anjali ma'am, are you able to hear me properly? Let me see if you are unmuted or not. Uh, Anjali ma'am, you can unmute yourself. Are you able to hear me? Hello, am I audible? Yes, ma'am, you are. Hello? Yes, ma'am. Uh, Okay, okay. Good morning, everyone. Yesterday you had a mock test, and there were certain things which I found which was not up to the mark. First of all, I saw your PDs, and Shashank and one more was there. Nandini was there. And I found certain mistakes in them. First of all, the page which was used was not A4 size. The rule paper which you are using should be A4 size. Means you can purchase it from the market right now. You have a very less time left now. You can go to the market, or you have a register of A4 size. You can get pages from there also. So first point is that you should have a A4 size rule paper with you. And A4 size you can purchase, that will be a better option for you all students. And round about 50 rupees you'll get 100 approx. So there will be no issue regarding the amount also, and it would be easy and handy for you. And secondly, the point was there, you have to write. You can write down somewhere. If you want to note somewhere, you can note down that if on the left side you have to write, left side you have to write your name, then your name in capital letters, then your class and section on the left, and then your admission number. So name, class section, admission number on the left side. In the center, you will mention the subject in capital. If you are having your maths examination in the subjective first, you'll be writing mathematics. And on every page, at approx 10 page, you get ready with this. You should have in hand with you at least 10 to 12 page with this subject name, with your name, class, section ready before examination. And you have, the timings are changed now. Your exam will start from 7:45 early in the morning. So you should be ready by 7:20. 7:30 you should be there for attendance with your class teacher. So you should be ready by 7:30 with your pages. You should have a black pen with you all. Black pen, A4 size paper, approx 10 to 12 pages, more than that. But your name, class, section should be written, and mathematics in the center. The subject should be in the center, and on the right side you will write date. At least 10 pages per, you should write date. Whatever the date, I think it's on 19th if we have her. So on 19th, very clearly you will write down the date, then set number. Date के नीचे रखेंगे set number. Set number on the spot you will get, maybe A, B, whatever the set you'll be getting. That you will note down on the last 5 minutes will be left. Then you'll be writing. Don't waste your time at that very hour. So as soon as you get the paper, you have to read the paper first. So set number you can mention later on. Then you have to write TP, total pages. सेट के नीचे लिखेंगे टोटल पेजेस. टीपी मेंशन कर देंगे तो भी हम समझ जाएंगे. टोटल पेजेस आप लिखेंगे, वी विल अंडरस्टैंड. उस समय टोटल पेजेस भी नहीं लिखेंगे आप. अगर आप 1 पेज लिख रहे हैं तो 1 लिख के छोड़ देंगे, ऑब्लिक करके छोड़ देंगे, बिकॉज यू डोंट नो हाउ मेनी पेजेस यू विल बी covering all through the exams, maybe 10, maybe 12, maybe 15, whatsoever. So 1 number डाल के छोड़ देना है and start your exam. So on each paper, you should be ready with these things: your name, class section, admission number. On the left center, you should write your subject number. अगर first page पे कर रहे हैं, you should cover the second same page पे, next page पे भी mention करेंगे mathematics, name, class section. Page number 2, पीछे वाला page.
So similarly, you have to cover all the pages. 10 ready रखेंगे, बस आपको क्या नहीं लिखना है, total number of pages के नीचे कितना page use कर रहे हैं, and set number, which you will be writing when the last 5 minutes will be left, when your teacher will give you a warning of 5 minutes. So then you will be starting making PDFs, and whatever you want to, you just have to give a quick revision. You just have to write down all these things and start compiling the things at that very 5 minutes. So first of all, I'm going to tell you each and every point. 7:30 sharp, your teacher will take attendance. You'll be giving a fast thumb impression in 10 minutes. In 10 minutes, you'll be giving the 7:40, you'll be all ready. Early in the morning, 7:40, you'll be ready for that. And at 7:44, I'll be sending papers on your groups. So 7:44, you'll be receiving your paper. You will get it ready. You start reading sharp at 7:45. 7:45 to 8, you'll be reading the question paper. You will, as soon as I send the paper, your teacher will at once start reading. So at once you will get a notification and you'll be start reading the things. 15 minutes, sharp 8. 8, your teacher will write, start writing. You will start writing. So we will change the setting sharp at 8:25. Approx after 10 minutes. If you are, there will be no question or error in the paper. Hope so. If you're facing any problem in within the 5 minutes or 10 minutes, your paper, you should write the query, but answers, another thing, not even posted. Anything you should not post extra on that. Only just write question number 5, this, ma'am, problem. Your teacher will be there with you, means the teacher which is teaching with you, and the teacher, your class teacher, and I'm also there in the group. So whatever problem you faces within that period of time of 5 to 10 minutes, you'll be writing that. And after that, your teacher will close the settings for 1 and approx 20 minutes. So you'll be writing down the paper, and after 9:25, your class teacher will write down stop, just 5 minutes left. So at that 5 minutes, you have to start with the things कि जितना pages है फटाफट वो लिखना है, उसके बाद set number फटाफट डाल देने हैं, black pen complete use करना है. And if you have that time, 2 minutes left, start making PDFs, because PDFs take a lot of time. At least approx 10 minutes is taking time. So practice making PDFs of 10 to 12 pages today. Try to make, we are going to have a mock test right now at 10:45 attendance will be there. So you will have a quick, you will take that time, instructions will be given to you, and you have to make the PDF within the time period. If you finish your work before time and there is a lot of time, start preparing your PDF, have it with you, but don't stand it in the groups before. Your settings will already be changed. You won't be allowed to send. As soon as your teacher says, stop writing and start making PDFs, and the submission time starts, you have to start. Means at 9:30, you will be sending. After 9:30, after means 9:31, 9:32, you can start sending your PDFs, not before 9:30. We won't accept that. Start making PDFs, send it by 9:45, and the lines will be soon closed. Your teacher will not give any intimation, we are closing the lines, no 5 minutes. Approx time management अपने पास clock रखेंगे, 9:45 से देर करते हैं, teacher अपने आप settings बदल देगा. So आप फिर नहीं भेज पाएंगे. So it is the at only 15 minutes for PDF submission. And listen, children, you have 80 marks exam. 80 marks exam you have in your already. 80 marks exam may we give you 3 hours, but now you have 50 marks exams and we are giving you 1.5 hours. We are already giving you 15 minutes extra in this. So it would be easy. You'll be doing everything within the time period. You'll be getting approx 5 minutes. And you can start making PDFs, but don't send PDF. I repeat, don't send the PDF before time. When the time sir says stop writing, start preparing for PDFs, and he says submit now. Submit, he'll write on the same time, because submission time is 7:40.
सबमिशन टाइम इज 9:30 to 9:45. So 9:30 पे ही सब कुछ वो बोलेंगे और उसी टाइम से you'll be start sending PDF फटाफट फटाफट 9:45 पर बंद हो जाएगा. You won't be able to send any PDFs. I think I'm very clear to you all now. Regarding science and social sciences, I would like to know that I would like to inform you that if you have 3 subjects, suppose bio. So we are starting with the bio. You are writing with the bio subject. Your first is bio. You're covering your bio, or some maybe covering physics. You find physics easy. So you will start with that thing. You will write physics subject, at least physics first paper and physics second page. At least itna likh ke rakhenge. So what you will do, you'll do the paper first page, then covering the second one, and you do the physics on third page. Now it's over. You're not covering the fourth one, the back one. So what you will do, you'll cut that page, and but you mentioned the number. You have to do bio separate. You have to do your voice got interrupted for some time, for 5-10 क्या seconds. चीज? Pardon sir, pardon, what are you saying? Ma'am, you were not audible for 5-10 minutes, 5-10 seconds. हाँ, विजय राठौर was calling me sir. हो सकता है वो भी चाह रहे हो क्लास में एंट्री के लिए. Maybe okay, I'm just saying कि जो भी आप साइंसेस के सब्जेक्ट करेंगे, you will do it in separate pages. Because जैसे अगर हम बायो 3 pages में कर रहे हैं बच्चों, तो पीछे वाला पेज अगर आप यूज कर रहे हो, using the fourth one of chemistry, we cannot separate and give it the complete pages of bio to your bio teachers, because there will be chemistry on the next page. So it would be difficult for us to give it to your chemistry teacher half. So all the sciences to be done, all biochemistry, physics to be done on separate pages. If you are using 3 pages, mark the other one cross and write down 4. Numbering will be same. अगर आप plain paper पीछे नहीं भी use कर रहे हैं, you should write the number on it. Number 5 from chemistry, then number 6 on the, like this you will go on, and the PDF will be named from your name, your admission number and science. ऐसे ही social science, history, civics एक तरफ, geography separate. सर इनको ये वाला पॉइंट और क्लियर कर दीजिए अपने लैंग्वेज में अगर आप चाहें तो, अगर ये समझ नहीं पा रहे हैं तो, अगर इनको अभी भी कोई दिक्कत है तो. आमिर सर. All right, ma'am. Amir, Ma'am, sir. I'm going to share screen, and there are 2 Nannis in our class. One is, one is the one about whom you had discussed right now, and there is the second one who had prepared this PDF, and I found it proper. So I'm sharing the screen. Okay. Is it visible to you? Hi, it is visible to me. Let me, Amir, I'll join you after 5 minutes. I'm going to hear what Vijay Rathore sir is saying. So, right, इनको bio और chemistry और physics का बिल्कुल clear कर देना कि PDF science के नाम से होगी, मगर separate pages पे करेंगे, ताकि हम easily जो है अपने तीनों teachers को staple करके bio अलग, chemistry अलग, physics अलग भेज पाए. मगर PDF एक साथ बनाएंगे, bio अलग नहीं भेजेंगे, chemistry अलग नहीं भेजेंगे, 3-3 page. They will be sending all together, all the 15 pages, all the 16 जितने भी कवर कर रहे हैं पेजेस, और हर पेज पे भले ही काम ना हो पीछे वाले पेज पे, लेकिन वो पेज काउंट किया जाएगा. ठीक है, ये बता देना है. Okay, ma'am. I'm leaving right now. Okay. So I think it's all clear. ठीक है. Yes, ma'am. Okay, ma'am. All right, so students, this is a PDF which one of the students had sent us. This is the PDF of Nandini Agarwal, whose roll number is 11367. See, she has done it very beautifully. She has written the subject mathematics in bold at the top of the paper. And since there was no proper margin above, there was no space in the margin of top margin of the page. And that is why she has used this space to write down the subject and all the details. So she has clearly written on the top the subject, and then she has written her name, admission number, class section, and since there was no set yesterday, therefore she has not written any set number, and then she has written page numbers. So most of the students have written the page numbers properly, लेकिन ज्यादातर जो स्टूडेंट्स से गलती हुई है वो हुई है कि उन्होंने ये जो अपर पेज वाला मार्जिन है उसको प्रॉपर्ली यूज नहीं किया है.
सो नंदिनी हैज डन इट वेरी प्रॉपर्ली। दूसरी बात, उन्होंने रूल्ड शीट्स का इस्तेमाल किया है जो कि प्रॉपर A4 साइज रूल शीट्स हैं, और साथ ही साथ में अगर आप देखेंगे तो नंदिनी ने जितने भी फोटोज क्लिक किए हैं वो बहुत ही क्लियर फोटोज हैं कि अगर हम जितना भी जूम इन कर लें वो खराब नहीं हो रहे हैं। साथ ही साथ में उन्होंने जो फोटोज क्लियर किए हैं क्लिक किए हैं उसमें मार्जिन एकदम सही हैं, और इस वजह से आप देखेंगे कि और हर पेज पे उन्होंने बहुत क्लियरली लिखा है कि व्हाट इज द सब्जेक्ट एंड व्हाट आर द पेज नंबर्स। So it has been written very clearly, and that is why you'll find this PDF very proper. So if you want, I can send this PDF again on the half yearly examination group. I'll be preparing another half yearly examination group, which would be only for Hindi mock tests, which are going to have today. Probably of Hindi. I think it's of Hindi only. Anjali ma'am is going to tell us of which subject are we going to have examination demo exam today. मैं एक बार सारे स्टूडेंट्स को फिर से इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि all right, I'm receiving certain messages, so let me check out the messages also. And then, all right. So Ishant is asking, sir, can we find these pages on the stationery shops nearby? Yes, Ishant, ये बहुत ही सिंपली हर जगह पर हर स्टेशनरी शॉप में होते हैं। आप जाएंगे, आप उनसे जाके कहेंगे कि A4 साइज की असाइनमेंट शीट्स दे दीजिए लाइंस वाली। I'm sorry, आप वहां जाकर किसी भी दुकानदार से बोल सकते हैं, स्टेशनरी शॉप से, आपके घर के आसपास चाहे बड़ी स्टेशनरी शॉप हो चाहे छोटी स्टेशनरी शॉप हो, वहां पे बहुत ही इजीली आपको मिल जाएगा। सो आप वहां जाकर के कहेंगे कि असाइनमेंट शीट्स दे दीजिए लाइंस वाली, जिसमें दोनों तरफ लाइंस हो। अब अगर मान लीजिए उन असाइनमेंट शीट्स में ऊपर मार्जिन नहीं है फ्री, तो कोई बात नहीं है, आप हर पेज की फर्स्ट 4-5 लाइंस का इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके से डिटेल्स लिखने के लिए, बट मेक श्योर कि डिटेल्स बहुत ही क्लियर लिखी हुई हो। अब एकांशी इज आस्किंग, सर is today a mock test? Yes. My internet was a little unstable for a few seconds. I hope I'm clearly audible to you now. Ekanshi is asking, sir, is today a mock test? Yes, बेटा, आपका mock test अभी क्लास के बाद, हमारी 10 बजे से 11 बजे तक क्लासेस हैं। सो 10 बजे से 10:30 बजे तक हमारी क्लासेस हैं। सो एट I mean my class with class 7th. So at 10:45 we'll be starting another test, and the name that would be another demo exam. एंड प्लीज मेक श्योर कि उस डेमो एग्जाम में आप सारी डिटेल्स को सही तरीके से लिखें। सो नंदिनी की ये जो पीडीएफ है, ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे पीडीएफ होना चाहिए। ना सिर्फ नंदिनी ने बल्कि और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छी पीडीएफ भेजी थी, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ने कुछ कॉमन गलतियां करी थी जिसके बारे में हाईलाइट करना जरूरी है। पहला ये कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सिंपल A4 साइज की जो शीट्स होती हैं ब्लैंक वाली, जिसपे कोई लाइन्स नहीं होती, उनका इस्तेमाल किया था। अब उसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि आप मैथ्स में तो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब आप सोशल साइंसेस हिंदी और इंग्लिश लिखेंगे तब आपकी लाइन्स सीधे नहीं खिंच पाएंगी, आप सीधे नहीं लिख पाएंगे, और इस वजह से टेढ़ा मेढ़ा होने की वजह से आपकी शीट्स प्रॉपर नहीं लगेंगी। और क्योंकि हमें इन सब का प्रिंट आउट निकालना है, इसलिए हमें प्रॉपर शीट्स की रिक्वायरमेंट है, और इसीलिए हम बार बार जो आपसे डेमो एग्जाम ले रहे हैं वो इसीलिए ले रहे हैं ताकि आपको समझ में आ सके कि आपको अपने आंसर्स को किस तरीके से लिखना है। नंदिनी ने एक खास बात इसका ध्यान ये रखा, जो कि लगभग सारे स्टूडेंट्स ने ही रखा था, कि पेज नंबर्स को प्रॉपर्ली लिखा जाए। सो 1/12, 2/12, 3/12, शी हैज रिटन लाइक दिस। अब डेमो एग्जाम आज 10:45 पर स्टार्ट होगा। देन डेमो एग्जाम आज 10:45 AM यानी अभी 10:45 पर स्टार्ट होगा। अभी 9:30 होने वाले हैं। अब से लगभग 1 घंटा 15 मिनट के बाद आपका डेमो एग्जाम स्टार्ट होगा। सब लोग प्लीज 10:30 बजे एकदम अच्छे से रेडी हो जाएगा। 10:30 बजे 10:30 बजे तक आपका ग्रुप बन चुका होगा। उस ग्रुप पर मैं आप लोगों से उस ग्रुप का नाम भी मैं दे दूंगा, और उस ग्रुप पे आप जो हैं वो ज्वाइन करवा दिए जाएंगे अपने आप ही, मैं आपको ज्वाइन करवा दूंगा, और फिर उसके बाद उस पर हम क्लास स्टार्ट करेंगे, डेमो एग्जाम स्टार्ट करेंगे। सो आज के डेमो एग्जाम में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है वो हमें बहुत क्लियर होना चाहिए कि किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। सो पहले तो ये कि just give me a second, अंजलि मैम has sent me a message, so let me read out her message and then all right. So आज हमारा हिंदी का मॉक एग्जाम होने वाला है। अंजलि मैम ने बिल्कुल अभी बताया कि हिंदी का मॉक एग्जाम हमारा होने वाला है। अब यही इसी तरीके से खास बातें ध्यान में रखना है, ऊपर अच्छे से सब्जेक्ट को हाईलाइट कर दीजिए ताकि हमें कभी भी दिक्कत नहीं हो कि किस सब्जेक्ट की बात की गई है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि पीडीएफ इधर उधर अगर मिस हो गई हैं डाउनलोड करते समय, क्योंकि हम आपकी पीडीएफ आपके ग्रुप से डाउनलोड करेंगे, तो हम पीडीएफ खोल के ही समझ जाएं कि सब्जेक्ट कौन सा है। इसी तरीके से जब सोशल साइंसेस का आपका एग्जाम होगा तो आपको ऊपर सोशल साइंस नहीं लिखना है,
आपके ऊपर हिस्ट्री लिखना होगा, सिविक्स लिखना होगा और ज्योग्राफी लिखना होगा, ठीक है। और अगर आपका साइंस का एग्जाम होगा तो आपके ऊपर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स ऐसे हेडिंग डालना होगी। अब आते हैं पीडीएफ बनाने पर। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कल पीडीएफ बनाने में गलती करी है। कुछ स्टूडेंट्स ने पीडीएफ मुझे पर्सनली भेज दी और ग्रुप पर नहीं भेजी। ऐसा नहीं करना है। आपको ग्रुप पर क्वेश्चन पेपर मिलेगा और आपको ग्रुप पर ही परमिशन दी जाएगी पीडीएफ को सेंड करने की। अगर आप मुझे पीडीएफ सेंड करेंगे, पर्सनली सेंड करेंगे, तो वो अकाउंट में नहीं लिया जाएगा। इट वोंट बी टेकन इनटू अकाउंट। जो अ, जो शीट्स आप ऑल राइट, सो जो शीट्स आप जो पीडीएफ्स आप ग्रुप पर भेजेंगे, जो आपका ग्रुप, जैसे आज आपका हिंदी मॉक एग्जाम का ग्रुप बनाया जाएगा, ऐसे ही हर एग्जाम का आपका अलग ग्रुप बनाया जाएगा। तो आपको पीडीएफ्स उसी ग्रुप पर पोस्ट करना होंगी। उसके अलावा आपको किसी भी टीचर को पर्सनली पीडीएफ्स को पोस्ट नहीं करना है, क्योंकि पर्सनल लेवल पर भेजी गई पीडीएफ्स को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। सेकेंड पॉइंट, टीचर आपको ये अनाउंस नहीं करेंगे कि पार्टिसिपेंट की सेटिंग्स चेंज कर दी गई हैं। अब पार्टिसिपेंट्स मैसेज भेज सकते हैं ग्रुप पर, अब नहीं भेज सकते। वो आपको खुद अंदाजा लगाना पड़ेगा। और आप अंदाजा कैसे लगाएंगे कि आपको नोटिफिकेशन ग्रुप के अंदर ही मिल जाएगा दैट द ग्रुप एडमिन हैज चेंज द सेटिंग्स टू पार्टिसिपेट, आई मीन टू ऑल पार्टिसिपेंट्स। अदरवाइज ये आएगा कि एडमिन हैज चेंज द सेटिंग्स टू ओनली एडमिन। तो आपको उन नोटिफिकेशन को पढ़ के अंदाजा लगाना पड़ेगा कि अब सेटिंग्स खोल दी गई हैं और अब लाइंस बंद कर दी गई हैं। एग्जैक्टली जैसे ही आपका एग्जाम खत्म होगा 9 बजे, तो exactly 9 o'clock we would be I mean 9:45 your exam would end. So जितने बजे आपका एग्जाम खत्म होगा exactly उतने बजे आपकी लाइंस क्लोज कर दी जाएंगी और उसके बाद पेपर्स एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। सो प्लीज मेक श्योर कि आप लोग प्रॉपरली टाइम से पेपर्स भेज दें। अब आती है पीडीएफ बनाने की बारी। आपने जो पीडीएफ बनाई थी उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये गलती करी कि अपने पीडीएफ का नाम नहीं रखा था। तो आपको अपनी पीडीएफ का नाम रखना है, साथ में एडमिशन नंबर डालना है और साथ में सब्जेक्ट लिखना जरूरी है। सो फॉर एग्जाम्पल आज आपका हिंदी का एग्जाम होने वाला है, तो सब लोग पहले अपना नाम लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक सोहा। सो सोहा वुड राइट, पीडीएफ का उनके नाम होने वाला है सोहा, देन एडमिशन नंबर एंड देन हिंदी। सो इसी तरीके से आज प्लीज सब लोग इस बात का ध्यान रखना, मुझे कोई पीडीएफ पर्सनली नहीं भेजना है, ग्रुप पर पोस्ट करना है। टाइम से पहले कोई पीडीएफ आप नहीं भेज पाएंगे। सो जैसे ही टाइम ओवर होगा, आपको टाइम बता दिया जाएगा, जैसे ही टाइम ओवर होगा आप तभी भेज पाएंगे जब आई मीन जैसे ही टाइम होगा पीडीएफ्स भेजने का, जब मैं आपसे कहूंगा स्टॉप राइटिंग एंड स्टार्ट सेंडिंग योर पीडीएफ्स, तब आप अपनी पीडीएफ्स को भेजना शुरू कर देंगे। ग्रुप पर भेजेंगे, पर्सनली मुझे नहीं भेजेंगे। और दूसरी बात, पीडीएफ का नाम सही रखेंगे, अपना नाम स्पेस एडमिशन नंबर स्पेस योर सब्जेक्ट। प्लीज मेक श्योर कि इसी तरीके से होना चाहिए। ऑल राइट, और अब आते हैं कि क्या-क्या टाइमिंग्स रहेंगी, कल एग्जाम की क्या टाइम रहेंगी। एकांशी इज सेइंग सर बट रूल शीट्स डोंट कम ऑन बोथ साइड्स। नो बेटा, रूल शीट्स दोनों साइड से आती हैं। आप दोनों साइड्स वाली असाइनमेंट शीट्स ले सकती हैं। अदरवाइज अगर आपके पास दोनों साइड्स की असाइनमेंट शीट्स अवेलेबल नहीं हो पा रही हैं, तो आप एक साइड से रूल शीट्स ले लीजिए, लेकिन फोटोज फिर एक ही तरफ से क्लिक करना होंगे आपको, बैक साइड में मत लिखना आप। दूसरा, ब्लैक पेन से ही लिखना है प्लीज। कल कुछ स्टूडेंट्स से ब्लू पेन से लिखा था, सो ब्लू पेन से आपको एग्जाम नहीं लिखना है, ब्लैक पेन से लिखना है। अब आप देख सकते हैं कि ब्लैक पेन से लिखे हुए एग्जाम आंसर्स क्लियरली नजर आ रहे हैं, ब्लू पेन से उतने क्लियर नजर नहीं आ पाते हैं। और जब हम उसका प्रिंट आउट निकालते हैं तो ब्लू पेन से लिखे हुए एग्जाम्स इतने क्लियरली आंसर्स इतने क्लियरली नजर नहीं आते हैं। अब एक बार मैं स्क्रीन स्टॉप कर रहा हूँ, दोबारा से शेयर कर रहा हूँ और अब आपको बताता हूँ कि एग्जाम के टाइमिंग्स क्या रहने वाले हैं। देखिए, ये आपको मैं नई डेट शीट है जो हाफ ईयरली एग्जाम का आपका अभी ग्रुप बनेगा, उसके ऊपर मैं आपको पोस्ट कर दूंगा ये वाली डेट शीट, ठीक है। अब इस डेट शीट को देख लेते हैं, एग्जाम की टाइमिंग्स देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव एग्जाम क्लास 8, सब लोग प्लीज बहुत ध्यान से देखिए। ऑब्जेक्टिव एग्जाम क्लास 8, मैंने बहुत जूम इन कर दिया, आपको साफ दिखाई दे रहा होगा। आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे है। सो कल 16 है, कल आपका पहले सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, वो है मैथमेटिक्स का ऑब्जेक्टिव एग्जाम। सो ऑब्जेक्टिव एग्जाम सुबह 7:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक होगा। सो 7 o'clock ऑल ऑफ अस आर गोइंग टू वेक अप बाय 7 o'clock। 7:15 सब एकदम परफेक्टली एक्टिव हो जाएंगे और 7:15 के बाद आप लोग एग्जाम्स 7:30 पर देना शुरू करेंगे। जैसे आप अपने स्कूल के टेस्ट देते हैं वैसे आपका एग्जाम होगा। आपको नोटिफिकेशन भेज दिया जाएगा ग्रुप पर कि स्टार्ट राइटिंग योर टेस्ट, तब आप अपना टेस्ट अटेम्प्ट करना शुरू कर देंगे। वो सारे स्टूडेंट्स जिनको ग्रुप में ऐड किया गया है, हाफ ईयरली एग्जाम्स के ग्रुप में ऐड किया गया है,
वही स्टूडेंट्स अपना ये ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी दे पाएंगे। वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक ना फीस पे करी है और ना ही हमें इन्फॉर्म किया है कि किस वजह से फीस पे नहीं कर पाए हैं, तो उनको अजमेर से, जहाँ से वेबसाइट बनी हुई है, वहीं से डिबार कर दिया गया है एग्जाम के लिए। सो नेचुरली आपकी उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने फीस पे नहीं करी, उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि हमें कांटेक्ट करें, लेकिन हमने भी कांटेक्ट किया तो उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया, इस वजह से उनको इंक्लूड नहीं किया गया है। सो ऑल ऑफ यू who are there in the half yearly exam group, you will be able to attempt your exam। तो कल 7:30 बजे से 8:30 बजे तक सुबह में आपका एग्जाम होने वाला है। अब आप ये पूछ सकते हैं कि सर इतनी सुबह एग्जाम क्यों रखा जा रहा है 7:30 बजे से 8:30 बजे? तो बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो ऑफिस, जिनका ऑफिस खुल गया है, उनको ऑफिस जाना पड़ रहा है और उनके घर पे एक ही फोन होता है, तो उस वजह से प्रॉब्लम हो रही थी उनको एग्जाम कंडक्ट करवाने में। तो इसीलिए आपके लिए 7:30 बजे से 8:30 बजे तक टाइम रखा गया है, क्योंकि मोस्टली जो ऑफिस होते हैं वो 9 बजे के आसपास खुलते हैं। सो 7:30 से 8:30 आप प्रॉपर्ली एग्जाम दे दीजिए और फिर उसके बाद आपके पेरेंट आपका फ़ोन लेकर के, जो उनका फ़ोन है वो लेकर के जा सकते हैं। ये है ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम का शेड्यूल, प्लीज़ ध्यान रखना, ये जो मैंने आपको बताया है ये ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम के लिए बताया है। अब आ जाते हैं सब्जेक्टिव एग्ज़ाम पर। सब्जेक्टिव एग्ज़ाम की टाइमिंग सबके लिए कॉमन है 6th, 7th, 8th के लिए। तो आपके लिए सब्जेक्टिव एग्ज़ाम की टाइमिंग्स जैसा भी मैम ने बताया था वही है। 7:30 से मैं अटेंडेंस लेना शुरू कर दूँगा उस ग्रुप पर और आप सबको थम्स अप भेजना होगा। 7:44 पर मैम क्वेश्चन पेपर भेज देंगी। क्वेश्चन पेपर भेजने के बाद कोई भी थम्स अप मत भेजना मुझे प्लीज, क्योंकि कल मैम ने इसी बात के लिए सारे टीचर्स की डांट लगाई है कि थम्स अप अटेंडेंस क्वेश्चन पेपर भेजने के बाद क्यों आ रहा है। सो क्वेश्चन पेपर भेजने से पहले आप लोगों को थम्स अप भेजना है। सो 7:30 से लेके 7:45 से पहले पहले आपको अपनी अटेंडेंस देना है थम्स अप भेज करके। 7:44, 45 पर मैम अंजलि मैम क्वेश्चन पेपर पोस्ट कर देंगी। 7:45 से 7:45 से 8 o'clock तक आपका रीडिंग टाइम रहेगा। आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने का टाइम दिया जाएगा और अपनी प्रॉब्लम्स पूछने का टाइम दिया जाएगा। फिर 8 से 9:30 तक आपको लिखना होगा। मैं 8 पर आपको मैसेज भेजूंगा, स्टार्ट राइटिंग योर एग्जाम। जैसे ही स्टार्ट राइटिंग और एग्जाम कहूंगा मैं, उसके फौरन बाद मैं सेटिंग चेंज कर दूंगा और सिर्फ एडमिन ही उस पर मैसेज कर पाएंगे, कोई भी पार्टिसिपेंट नहीं कर पाएंगे। फिर 9:30 से लेके 9:45 तक आपको अपनी पीडीएफ बना करके सेंड करने का काम करना है। सो अगर 9:30 तक आपका राइटिंग टाइम है, तो 9:30 से पहले 5 मिनट पहले मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा मैसेज करके 5 मिनट्स आर लेफ्ट। फिर 9:30 पर मैं ऑटोमेटिकली आपको पहले तो ये मैसेज करूंगा आपको कि 9:30 पर कि स्टॉप राइटिंग एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग पीडीएफ्स। तब मैं फॉरन सेटिंग्स चेंज कर दूंगा और सारे पार्टिसिपेंट्स को मैसेज करना अलाउड हो जाएगा। तो 9:30 पर आप अपनी पीडीएफ्स को भेज सकते हैं। 9:30 से 9:45 तक आपको अपनी पीडीएफ्स भेजना है। एग्जैक्टली एट 9:45 AM सारी लाइंस बंद कर दी जाएंगी और आप अपना क्वेश्चन पेपर आंसर शीट उसके बाद नहीं भेज पाएंगे। सो प्लीज मेक श्योर कि आज आप खूब सारी प्रैक्टिस कर लीजिए कि फोटोज कैसे 10-12 पेज के क्लिक करना है, कैसे उनको क्रॉप करना है, कैसे पीडीएफ बनाना है और फिर पीडीएफ का नाम कैसे रखना है। और साथ ही साथ में ये सारा काम आज आप 10:30 बजे से पहले कर लीजिए, ताकि आप 10:30 बजे के बाद जब डेमो एग्जाम अटेंड करेंगे तो उसमें आप प्रॉपर्ली अपने आंसर्स पीडीएफ्स बना करके भेज सकें। ऑल राइट, अब आते हैं इस पर डिस्ट्रीब्यूशन मार्क्स किस तरीके से है। सो वीकली टेस्ट के 10 मार्क्स लिए जाएंगे। आपकी जो नोटबुक्स हमने एक बार चेकिंग के लिए मंगाई थी उसकी लिस्ट हमारे पास है, उसके बेसिस पे हम आपको 5 मार्क्स देंगे। सब्जेक्ट एनरिचमेंट जो भी हमने आपके साथ डिस्कशंस किए हैं और जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत एक्टिव रहे हैं, उनको सब्जेक्ट एनरिचमेंट में फुल मार्क्स मिलेंगे। वो स्टूडेंट्स जो एक्टिव नहीं रहे हैं, जिन्होंने रिस्पॉन्ड तक नहीं किया है, जिनको मैंने मैसेजेस किए हैं लेकिन उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो उनको कम मार्क्स दिए जाएंगे। हाफ ईयरली एग्जाम में 30 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पेपर है और 50 मार्क्स का सब्जेक्टिव पेपर है और इस हिसाब से आपके टोटल हो गए 100 मार्क्स। सो ये सारी चीजें मैं आपको अभी जो नया ग्रुप बनाने वाला हूँ हिंदी मॉक एग्जाम का, उसमें ये सारी डिटेल्स, ये पूरा पेज, ये 2 पेजेस मैं आपको भेजने वाला हूँ। ठीक है, अब आ जाते हैं वापस ऊपर। आप लोग पहले कंफ्यूज हो रहे थे कि सर जो इसमें डेट शीट में जो टाइम दिए हुए हैं वो तो अलग हैं और जो टाइम आप बता रहे हैं वो अलग हैं, इसीलिए हमने डेट शीट के टाइम्स को भी, डेट शीट के अंदर दिए गए टाइम को भी हमने पूरे तरीके से चेंज कर दिया है ताकि आपको किसी भी तरीके की कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो आप देख सकते हैं क्लास 8 का जो पीडीएफ, क्लास 8 वाला जो सेगमेंट है उसमें आप देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव एग्जाम की टाइमिंग 7:30 से 8:30 है और सब्जेक्टिव एग्जाम की टाइमिंग 7:45 से 9:45 है। तो अब मुझे लगता है कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आपको दिक्कत है तो फिर मैं फिर से इस मीटिंग स्टार्ट कर रहा हूँ और अभी ये मीटिंग खत्म होने वाली है, तो मीटिंग स्टार्ट कर रहा हूँ मैं दोबारा से, आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर कोई क्वेरीज हैं तो।
वरना ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अभी डेमो एग्जाम हिंदी का थोड़ी देर में स्टार्ट होने वाला है। सो आप अभी जा सकते हैं और मेरी तरफ से मीटिंग ओवर हो चुकी है। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो मैं अभी मीटिंग रीस्टार्ट कर रहा हूं, आप रीज्वाइन कर सकते हैं अगर किसी के कोई क्वेश्चंस है। नहीं है तो ऑल द बेस्ट फॉर योर हिंदी एग्जाम। अभी मैं आपका व्हाट्सएप ग्रुप बनाने वाला हूँ। श्रेया गुप्ता प्लीज आप मैसेज को कॉपी पेस्ट कर लीजिए, मीटिंग खत्म होने वाली है, मैं दोबारा से मीटिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, तब आप ये क्वेश्चन मुझसे पूछ लीजिएगा। और मेहुल आप भी, ये मीटिंग खत्म हो रही है 2-3 सेकंड्स के अंदर ही अंदर ऑटोमेटिकली।